Good morning, students, and welcome to online lecture of Sharadhi More English School. Yes, so today I am going to teach you EVS first chapter, our environment. Okay, so let's start. Look at the picture alongside. You can easily name all these things. What material are they made from? Yes, so you have to observe this picture. There is a bat, pot, cup, right? So you have to observe these pictures and what material are they made from. Yes, using which material these substance are made. मतलब ये जो सारी चीज़ें बनी हुई ऑब्जेक्ट जो बनी हुई वो कौन सी चीज़ों से बने हुए, राइट? सो वेयर डू वी फाइंड दिस मटेरियल? नाउ वेयर वी फाइंड दिस मटेरियल? अब जो मटेरियल्स ये चीज़ें बनी हुई है, राइट, तो वो कहाँ पे मिला? ऑब्वियसली वी गेट दैट मटेरियल फ्रॉम आवर नेचर. हम लोग को ये सारी चीज़ें कहाँ से मिली? पॉट है ना, अर्दन पॉट. तो अर्थ हम लोग को मट्टी कहाँ से मिली है? नेचर से मिली है. बैट वुड से बना है, राइट, तो किससे मिला हम लोग को? ट्री से मिला है. कप, तो दिस ऑल थिंग वी गेट फ्रॉम आवर नेचर. वॉट आर द यूजेस ऑफ दिस थिंग? येस, नाउ वॉट आर द यूजेस? अब ये जो सारी ऑब्जेक्ट्स है इसका क्या यूजेस है in our life? So first, bat we are using for playing cricket. Cup, we drink water, tea, coffee in cup, है ना. And pot, we fill water in this pot. You can name this thing too. Where do we find them? What are they used for? Yes, again you have to observe this picture. One is banana, then amla is there, and corn is there, right? So these all are food, है ना. हम लोग इसको यूज़ करते, हम लोग इसको ईट करते, खाते. So firstly you have to name this thing. You can name this thing too, right? Now where do we find them? Yes, so where we find this thing? Obviously नेचर के थ्रू हम लोग को ये सारी चीज़ें मिल रही है ना. What are the use? अब इसका यूज़ क्या होता है? ऑब्वियसली हम इसको खाने के लिए यूज़ करते हैं. वी आर यूजिंग दिस थिंग फॉर ईट. Now take a look around. Now this is a picture. Here trees are there, bushes are there, some houses are there, mountains, hills, river, rabbit is there, stones are there, squirrel is there, right? So you have to observe this picture. There are many things around us. They form our environment. Yes, so whatever thing around us, जो भी चीज़ हमारे आसपास है, that is our environment, right? There are two types of environment. One is man-made environment and second one is natural environment, right? तो ये जो सीन है, ये जो पिक्चर है, राइट, सो दिस वन इज़ नेचुरल एनवायरनमेंट. इसको किसी ने बनाया नहीं है ना, राइट. अभी जैसे हम लोग रह रहे, वी आर लिविंग इन मुंब्रा, राइट. तो यहाँ पे अब जो भी अब हम लोग हमारे अपार्टमेंट से बाहर निकलेंगे तो वी विल सी आवर बिल्डिंग इज सराउंडेड बाय सम अदर बिल्डिंग्स, है ना. हमारी जो बिल्डिंग है किससे सराउंड है? अदर बिल्डिंग से सराउंडिंग है. तो वो भी क्या हमारा एक एनवायरनमेंट है, लेकिन वो कैसे? मैन मेड इन्वायरमेंट है, क्योंकि वो जो बिल्डिंग्स है वो किसने कंस्ट्रक्ट किया है? मैन ने कंस्ट्रक्ट किया है. दैट्स व्हाई इट इज़ मैन मेड इन्वायरमेंट. There are stones, rocks and soils. Now yes, you can easily see these things in the picture. Soils, stones and rock. There are rivers and stream and lake. There are also river. Yes, in our nature rivers are there, streams are there, lakes are there. There is air. All around us there is air. हमारे आसपास सब जगह क्या है? एयर है. There are hills and mountains. Obviously hills है, mountains है हमारे nature में. Jungles is there. There are field and houses, roads and also barren land. Yes, obviously field, खेत है, houses, roads. It is also man made, right? Now barren land में तो जहाँ पे हम लोग फार्मिंग नहीं कर सकते. It's called barren land, right? So we also see many different animal around us. Yes, and we can also see different types of animals around us, है ना. हमारे आसपास हम लोग different टाइप के animals भी देखते हैं. Different type of trees and bushes and climber make our environment beautiful. Yes, so these all things make our environment beautiful. इससे ये सारी चीज़ों से हमारा जो environment है वो कैसे हो जाता है? Beautiful हो जाता है, right? We too are a part of this environment. Obviously we are also part of environment. हम लोग को भी किसने बनाया? अल्लाह ताला ने बनाया, गॉड ने बनाया, right? So we are also a part of environment, right? Now a sparrow and a roadside stone. Now let us look at the stone and a sparrow in our surrounding and compare them. Yes, so yeah, here you have to take two things. One is stone and another one is sparrow, and you have to compare this two thing. आप लोगों को क्या करना है? ये दोनों चीज़ों का मतलब one is stone and second one is sparrow, bird. तो आपको ये दोनों को compare करना है. Okay. A stone remain where it is. Its place change only if someone pick it up and move it. It does not eat, so it does not grow bigger. It does not have babies either. Yes. Now, स्टोन रिमेन वेरी. ऑब्वियसली अगर आप लोगों ने जहाँ पे स्टोन को रखे हो तो वो एज इट इज़ वहीं पर रहेगा.
टिल दैन, जब तक कि आप उसको चेंज नहीं करोगे, मीन्स इफ समवन पिक इट अप एंड मूव इट, अगर जब तक हम उसको उठाते नहीं, उसको मूव नहीं करते फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, उसका जब तक ये मूवमेंट नहीं होगा, वो वहाँ जहाँ पर है वहीं पर रहेगा, राइट। इट डज़ नॉट ईट, इट डज़ नॉट ईट, वो कुछ खा सकता है स्टोन? नो। सो इट डज़ नॉट ग्रो। ऑब्वियसली अब जब वो कुछ खा नहीं सकता है तो वो ग्रो कैसे होगा, बड़ा हो सकता है ना, उसकी साइज़ में इंक्रीज़ नहीं होती, उसकी साइज़ जो होती है वो इंक्रीज़ नहीं होती है, वो एज इट इज़ जो साइज़ का है वही साइज़ करेगा। इट डज़ नॉट हैव बेबीज़ एदर, ऑब्वियसली वो बेबीज़ बॉर्न कर सकता है? नो, वो बेबीज़ भी नहीं दे सकता है। नाउ इट्स नॉट द सेम स्पैरो ना, ऑब्वियसली अब देखो जैसे ही हम लोग ने यहाँ पे पॉइंट्स पढ़े हैं स्टोन्स के, राइट, तो वैसे ही सेम एज इट इज़ स्पैरो के लिए भी सूट हो रहा है? नो। स्पैरो जो है दे बिल्ड देयर नेस्ट, वो अपना खुद का नेस्ट बनाती है, हाउस बनाती है, राइट। हाउस, नेस्ट इज़ द हाउसेज ऑफ बर्ड्स एंड दे मूव हेयर एंड देयर ऑन देयर ओन, येस, मीन्स विदाउट एनी वन हेल्प दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, है ना, वो जहाँ चाहती है वहाँ जा सकती है। दे ईट इंसेक्ट एंड ग्रेन्स एंड दे आर ईटिंग फूड, वो क्या खाती है? फूड खाती है, इंसेक्ट खाती है, राइट। दैट इज़ वाई दे ग्रो, ऑब्वियसली दे आर ईटिंग फूड, दे आर ईटिंग इंसेक्ट, ग्रेन, दैट्स वाई दे ग्रो। इसकी वजह से क्या होती है? वो बढ़ती है, ग्रो होती है, उनकी साइज़ क्या होती है? इंक्रीज़ होती है, बढ़ जाती है। दे ले एग इन नेस्ट, अब वो क्या दे रही है? दे ले एग्स, एग्स देती है, ऑब्वियसली वो एग्स में से क्या निकलता है? स्पैरो, सॉरी बेबी स्पैरो आती है ना। स्पैरो टेक अ लॉट ऑफ केयर ऑफ देयर यंग वन, ऑब्वियसली अब जो बेबी स्पैरोज आती है तो उनकी जो मामा होती है स्पैरो, वो उनकी बहुत ज़्यादा टेक केयर करती है। सो दिस इज़ अ डिफरेंस बिटवीन स्पैरो एंड अ स्टोन, रोड साइड स्टोन्स, ओके। Now why do we see this difference between the sparrow and the stone? Yes, so these are the two different thing that we already seen in sparrow and stone, है, हम लोगों ने एक डिफरेंस देखे, राइट, स्पैरो में और स्टोन में। बट वाई डू वी, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब ये जो डिफरेंस है दोनों में, ऐसा क्यों डिफरेंस क्यों है? सो लेट्स सी, द स्पैरो इज़ अ लिविंग थिंग एंड द स्टोन इज़ नॉन लिविंग थिंग। नाउ ऑल वी नो दैट, है ना, अभी हम लोग को समझ में आ गया कि जो स्पैरो है वो क्या लिविंग थिंग है, लाइक अस, हम लोग भी लिविंग थिंग है, वी कैन मूव फ्रॉम आवर चॉइस whenever और wherever we want to go we can go, है ना, हम लोग को जब भी जहाँ भी जाना होता है हम जा सकते हैं। वी कैन ईट फूड, हम लोग फूड खाते हैं, है ना, हम लोग की जो साइज़ होती है वो इंक्रीज़ होती है, हम बड़े होते हैं। बट द स्टोन इज़ नॉन लिविंग थिंग, लेकिन जो स्टोन है वो मूव हो सकता है, वो ईट कर सकता है? नो, इट कैन नॉट ईट, इट कैन नॉट मूव, है ना, बाय देयर ओन, दैट्स वाई इट इज़ नॉन लिविंग थिंग, स्टोन इज़ नॉन लिविंग थिंग, ओके। So things in our surrounding form two groups, yes, so in our surrounding there are two groups, one is living thing and another one is non living thing, right। living thing like us, जो हम जैसी चीज़ें कर सकते हैं, मीन्स वर्क कर सकते हैं, मूव हो सकते हैं, ईट कर सकते हैं, राइट, तो ये हो गए लिविंग थिंग। एंड नॉन लिविंग थिंग जो एज इट इज़ जहाँ पर है वहीं पर रहेंगे, ओके। नाउ लिविंग थिंग आर टू काइंड्स, अब देखो लिविंग थिंग में भी क्या है? टू काइंड्स, वन इज़ प्लांट्स एंड अनदर वन इज़ एनिमल, राइट। Animals have babies and seedling grow from seeds. The seedling then grow into plants. This tell us that plants are living thing. Yes, देखो अब animals have babies. Animals के पास क्या babies है, right? एंड सीडलिंग ग्रो फ्रॉम सीड्स, अब जो सीडलिंग्स होती है, सीडलिंग मतलब छोटी छोटी जो सीडलिंग्स होती है उससे पहले तो सीड्स हम लोग ग्रो करते हैं ग्राउंड में ना, अब उससे क्या होती है? बारीक बारीक एकदम छोटे छोटे से प्लांट्स आते हैं, एकदम सीडलिंग्स आती है एकदम छोटू सी, उसके बाद वो प्लांट में कन्वर्ट होते हैं, फिर वो ट्रीज में कन्वर्ट होते हैं, राइट। तो द सीडलिंग देन ग्रो इनटू प्लांट, देखो फिर प्लांट्स किस में, सीडलिंग किस में कन्वर्ट हो गई है? प्लांट्स में ग्रो हो गई है, कन्वर्ट हो गई है। देन दिस टेल, अब ये जो प्रोसेस चल रही है, मतलब एक हम लोग ने सीड को ग्रो कर, उसके बाद उसमें से सीडलिंग ग्रो हुई है, फिर सीडलिंग में से प्लांट ग्रो हुआ है, फिर प्लांट के बाद क्या होता है? वो ट्री में कन्वर्ट हो जाती है, ये जो प्रोसेस है। सो दिस प्रोसेस टेल अस दैट प्लांट्स आर लिविंग थिंग, इससे हमको क्या पता चल रहा है? जो प्लांट्स है वो क्या है? एक लिविंग थिंग है, ओके। प्लांट्स टू मूव, फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ बर्ड ब्लूम इनटू अ फ्लावर, इट पेटल ओपन, बट मूवमेंट ऑफ प्लांट आर नॉट सो ईजी सीन। येस, अब देखो प्लांट्स कैन मूव, प्लांट्स टू मूव, फॉर एग्जाम्पल दे आर गिवन वन एग्जाम्पल, व्हेन अ बर्ड ब्लूम, जैसे जो बर्ड होती है, फ्लावर की जो बर्ड होती है, जब ब्लूम होती है मतलब जब ओपन होती है वो, है ना, जब वो फ्लावर बनने जाती है तो उसके जो पिटल्स होते हैं, पत्ते जो होते हैं, लाइक रोज़ फ्लावर, तो उसके जो पिटल्स होते हैं रेड रेड कलर के पत्ते ना, तो वो ओपन होते हैं, है ना। बट मूवमेंट ऑफ प्लांट आर नॉट सो ईजी सीन, मतलब उनका जो मूवमेंट होता है प्लांट्स का वो हम लोग ईजीली नहीं देख सकते हैं। प्लांट्स ऑल्सो नीड फूड, ऑब्वियसली देखो जैसे हम लोगों को फूड लगता है हमारी ग्रो के लिए, है ना, तो वैसे प्लांट्स को भी क्या ज़रूरत है? दे ऑल्सो नीड फूड। ऑफकोर्स प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस लाइक एनिमल्स डू, या तो ऑब्वियसली जिस तरीके से एनिमल्स मूव हो सकते फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वैसे ही जो प्लांट्स है वो मूव नहीं हो सकते।
देयर रूट होल्ड देम डाउन इनटू वन प्लेस. दिस इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट्स. ऑब्वियसली उनकी जो रूट होती है ना, जो मतलब नीचे होती है, ग्राउंड के अंदर होती है, नीचे होती है, अर्थ में होती है, सॉइल में एकदम एकदम टाइटली फंसी हुई होती है. तो उसकी वजह से क्या होता है, जो प्लांट है, जो ट्री है, वो वहीं पर ही रहता है, एज इट इज़ जहाँ पे है वहीं पर ही रहता है, वो मूव नहीं हो पाता. दैट्स वाई दिस इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स. और ये क्या है, बहुत बड़ा डिफरेंस है इन बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट्स. ओके, now can you tell? Okay, here you have to observe this picture. Are the thing in this picture living or non-living? Yes, so here student want to tell me that these things are living or non-living. Okay, so if it is a living thing, is it a plant or an animal? You have to tell. So firstly I'm going to tell you. So this is tree, right? So this is living thing, है ना? And rabbit is also living thing, frog is also living thing, but they are animals, right? Gas is non-living thing. Glass is also non-living thing. This is one small plant, rose plant, so this is living thing. And this is one utensil, so this is non-living thing. Okay.